Welcome, children. Children, the next in the sequence of videos on special journal entries, we have the next video related with banking transactions. Now, children, before we start with what is called as banking transactions, let us have a small discussion on why a businessman or a business house involves itself into banking transactions या banking transactions की ज़रूरत क्या पड़ती है. So children, be highly attentive on this audio for a minute, then we'll continue with the accounting part. Children, generally every businessman or a normal human being, irrespective वो business कर रहा है कि नहीं कर रहा, prefers to do activities through bank because bank is considered as one of the safest places where you can keep your money or valuables. Children, this is one of the reasons that a businessman depends mostly on banking activities. And children, businessman अपना पैसा safely यहाँ रख सकता है. And above all, after having maintained the accounts with the banks for multiple years, बैंक के साथ जब हमारे relations अच्छे होते हैं बच्चों, तो हम बैंक से excess money भी withdraw कर सकते हैं over and above what we have so called deposited in our account. Children, before we continue further, we need to understand that bank is an institution where money is kept as a safe deposit. Bank takes money from the depositors and uses it for the purpose of lending to the people who need the same. एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वो पैसे डिपॉजिट के फॉर्म में लेते हैं एंड टू द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो उस पैसे को बच्चों लेंड कर देते हैं एंड इंटरेस्ट इनकी इनकम होती है. चिल्ड्रन, there are 4 type of basic banking accounts. First is a saving account, which is not meant for the business community. Then children, we have recurring deposits where money is deposited every month, a fixed amount for a particular period of time, and then withdrawals could be done at so called the date of maturity. Then children, we have fixed deposit accounts where money is deposited in lump sum for a duration which may be more than 3 months up to 2, 3, 4, 5 years depending upon the scheme bank has given, and then withdrawal can be done at once only in lump sum with interest. बट बच्चों, हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट, रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स की बात नहीं करेंगे. वील बी टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट्स. बिजनेसमैन बच्चों जो भी अकाउंट बैंक में मेंटेन करता है हम उसे करंट अकाउंट बोलते हैं, where the businessman can deposit the money which he has collected as cash in the business for safekeeping, and bank children allows no interest on current account. Current account पे बच्चों कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. तो चिल्ड्रन, लेट अस अंडरस्टैंड कि हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं. एक बिजनेस को एडवांटेजेस इससे क्या है ये मैंने आपको बता दिए. द अमाउंट दैट इज देयर इनटू आवर करंट अकाउंट हम उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं. नेचुरली ट्रू, बैंक हमसे उस एक्सेस विड्रॉल पे बच्चों इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, बट डिपॉजिटेड अमाउंट पे चिल्ड्रन बैंक डजंट अलाउ एनी इंटरेस्ट टू द बिजनेस कम्युनिटी इन केस ऑफ करंट अकाउंट्स. तो चिल्ड्रन, लेट स्टार्ट. द फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वी हैव फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. नाउ चिल्ड्रन, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हो तो जनरली एज अ बिजनेसमैन आपके बिजनेस के कुछ क्रेडेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे. Necessary so-called formalities would be done and you will be requested to deposit some money. Likewise, your account gets opened. So children, you will get the transaction. Opened an account in the bank with rupees something. In my example, it is 15,000. So children, in the statement, we have 2 accounts that are seen. One is bank account, other is cash account. Children, bank is the receiver. We follow the rule of personal account. Debit the receiver, and cash is going out from the custody of the business in physical form. The rule for real account, children, credit what goes out. So children, the journal entry becomes bank account debit to cash account. The rule is debit the receiver, or you can say debit the increase in asset. बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी जायदाद है बच्चों. Cash is going out, credit the decrease in asset, or you can say credit what goes out. So children, when we open an account with the bank, this set of entry is passed. Next children, after opening the account,
we may deposit money again into the bank. Children, the transaction will be coming like this: deposited rupees 15,000 or any amount into the bank. So children, we have the same journal entry, what is titled as bank being the receiver, debit the receiver or debit the increase in asset. Cash is going out, children, credit what goes out or credit the decrease in asset. So children, the same entry will be passed. Either we open an account or we deposit the money thereafter. Then children, in times of need, we will be taking out the money from the bank. Transaction could come like this in the question: withdrew rupees 15,000 from bank, or it could be said like this: withdrew rupees 15,000 from bank for ऑफिस यूज. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, जब आपने बैंक में मनी डिपॉजिट किया था, बैंक वॉज एक्टिंग एज अ रिसीवर और हमारे पास से बच्चों कैश जा रहा था. नाउ चिल्ड्रन, बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक से बच्चों पैसे निकलेंगे. बैंक इज द गिवर, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड, एंड कैश is coming into the office. Children, the rule is debit what comes in. So children, the entry for cash withdrawn from bank is cash account debit to bank account. The rule is debit what comes in, credit the giver, or you can say debit the increase in asset, that is cash, credit the decrease in asset, that is money kept in the bank. Children, I hope so this concept is clear. बच्चों, एक इसी से मिलता जुलता ट्रांजैक्शन, रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बट मीनिंग इज टोटली डिफरेंट. इट इज फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. बच्चों, पर्सनल यूज के लिए आपने मनी ड्रॉ किया है. पर्सनल यूज मीन चिल्ड्रन, द बिजनेसमैन दैट इज द ओनर इज विड्रॉइंग मनी फॉर हिज पर्सनल यूज. चिल्ड्रन, ट्रांजैक्शन वुड कम लाइक दिस: withdrew some amount, say in my example it is rupees 15,000 from bank for personal use. So children, the rule becomes drawings account debit, that is debit the receiver, to bank, credit the giver. So children, the entry for withdrawing money from bank for personal use is drawings account debit to bank, where the rule is debit the receiver, credit the giver, or you can say debit the receiver, drawings account debit. टू बैंक के लिए चिल्ड्रन, यू कैन ऑल्सो यूज द रूल क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, बिजनेसमैन इज द रिसीवर. चिल्ड्रन, हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे एंड मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक. चिल्ड्रन, बैंक इज गिविंग द मनी टू द बिजनेसमैन, सो बैंक स्टैंड्स टू एक्ट एज अ गिवर. एंड बैंक में रखा हुआ पैसा बच्चों हमारी असेट है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई द रूल क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट. So children, the entry becomes drawings account debit to bank for cash withdrawn from bank for personal use. So children, continuing further, बच्चों बैंक हमें इतनी सर्विसेज दे रहा है, naturally true, they would charge some money also for their services, like they may charge us some interest if we borrow money from them. They may charge money for ATM card charges. They may charge money for passbook charges. The book in which we get the transactions updated from the bank is a passbook. Children, then बच्चों बैंक हमसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी चार्ज करता है कई बार. देन चिल्ड्रन, बैंक हमसे चेकबुक के चार्जेस भी चार्ज करेगा. सो चिल्ड्रन, फॉर मल्टीपल चार्जेस इम्पोज्ड बाय बैंक, द ट्रांजैक्शन कुड कम लाइक दिस: बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट rupees 3,000 charged by bank. Now children, bank charge act as an expense or interest may act as an expense. The rule is debit all expenses. And children, बैंक आपको फोन करके कॉल नहीं करेगा कि पैसा दीजिए, वो आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ कर लेगा. सो चिल्ड्रन, द बैलेंस केप्ट इन द बैंक गेट्स डाउन. आपकी असेट बच्चों बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. सो चिल्ड्रन, द रूल इज क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट. आप बैंक को क्रेडिट करेंगे. तो चिल्ड्रन, जर्नल एंट्री फॉर चार्जेस इम्पोज्ड बाय द बैंक becomes bank charges or interest account debit to bank. The rule is debit all expenses, credit the decrease in asset as such. तो बच्चों, बैंक चार्ज being a nominal account, expense gives the benefit of services from the bank. That's why children, हमने डेबिट किया, bank balance will get reduced, we have created it.
So children, I hope so the entry for bank charges is quite clear. आगे चलते हैं बच्चों, इन लाइन वी फॉलो अप. बैंक ने बच्चों हमें इंटरेस्ट दिया. एज आई सेड, करंट अकाउंट पे बच्चों बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देगा आपको, बट आपके डिपॉजिट्स हो सकते हैं बैंक में, बिजनेस डिपॉजिट्स, उन पे बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, एंड दैट इंटरेस्ट इज बीइंग गिवन इन योर करंट अकाउंट. सो चिल्ड्रन, अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन विल बी कमिंग लाइक दिस. बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया. तो चिल्ड्रन, इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम इज क्रेडिटेड, क्रेडिट कर देंगे बच्चों, एंड बैंक बैलेंस will increase children, our asset will go up. So the journal entry will become children, debit the increase in asset, bank account debit कर देंगे बच्चों, credit all incomes and gains. So children, the journal entry for interest allowed by bank will be bank account debit to interest account, debit the increase in asset, credit all incomes and gains. I repeat children, bank account debit to interest, the rule is debit the increase in asset, credit all incomes and gains. Next children, we have the transaction for demonetization. Now children, demonetization, as we know, is stoppage of a particular type of currency and replaced with the new one. So children, in case demonetization government ने declare किया था years ago, अगर आप अपने old currency notes बैंक में ले जाते हो and in exchange you get the new one, you have not deposited them in your account, you just exchange them with the new one. So children, no entry will be passed because there is actually no exchange of money in terms of deposit. आपने बैंक में मनी डिपॉजिट नहीं किया चिल्ड्रन, you went with the so called unauthorized notes and came back with the authorized ones. So children, no entry needs to be passed for this. Children, next we have the transaction, checks issued or checks given. Now children, what is a check? Children, it is a rectangular piece of paper wherein you authorize the bank to pay money to somebody, the person whose name is mentioned or the person who takes it to the bank. So children, इट्स अ जनरल यूसेज डॉक्यूमेंट. आप सबने देखा होगा चेक कैसा होता है बच्चों. तो चिल्ड्रन, आप चेक जब भी इशू करेंगे या देंगे, इट कुड बी फॉर मल्टीपल रीजंस. रीजंस आर चिल्ड्रन, हम एक्सपेंसेस के लिए चेक दे सकते हैं या सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए. सो चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस सेक्शन फर्स्ट. चिल्ड्रन, द एग्जाम्पल इज फॉर गुड्स बॉट और रेंट पेड थ्रू चेक रुपीज 80,000. So children, if we have bought goods, it's purchase account. If we have paid rent, it could be rent account. कोई एक होगा बच्चों एक ट्रांजैक्शन में. So children, purchase or rent belong to the category of nominal account. We'll debit all expenses. And children, we are instructing to the bank कि आप पेमेंट कर दीजिए. तो bank acts as a giver children. The rule is credit the giver. So children, purchase or rent account will be debited and bank account will be credited. बैंक के केस में चिल्ड्रन आप लोग credit the decrease in asset rule भी यूज कर सकते हो, the modern rule. So children, remember, when we buy goods or pay any expense, the account called purchase or rent will be debited and bank will be credited. So children, the entry would be purchase account debit to bank or respective expense account debit to bank. Expense could be children rent, salary, electricity, wages, telephone bill, anything children. तो बच्चों, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कुछ खास नहीं है. जहां पे हम अभी तक कैश वर्ड को यूज करते थे, वहां पे बच्चों बैंक आ गया. लाइक गुड्स बॉट फॉर कैश, एंट्री यूज टू बी परचेज टू कैश. रेंट पेड इन कैश, एंट्री यूज टू बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. बट चिल्ड्रन, हेयर it is being paid through bank, so entry becomes purchase or rent account debit to bank account. Similarly children, we may give checks to our suppliers or creditors. Children, the transaction would come like this: gave a check of rupees 80,000 to Monu. So children, Monu happens to be the receiver and bank is giving money. The rule is debit the receiver, we have debited Monu, credit the giver, or decrease in asset, we have created bank.
So children, the entry becomes Monu's account debit to bank account. So children, the entry is simple as such. Like children, we issued checks to somebody. Now the concept could be कि हमें चेक किसी से मिला है. बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इस पार्ट ऑफ द वीडियो को, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट है. अब बच्चों हमें चेक किस लिए मिल सकता है? फॉर वेरियस इनकम्स, लाइक वी माइट हैव सोल्ड गुड्स, रेवेन्यू रियलाइज किया बच्चों हम लोग ने बिजनेस में, और कमीशन इज रिसीव्ड थ्रू चेक. सो चिल्ड्रन, if the transaction is goods sold or commission received through check, children remember, nowhere it is mentioned कि हमने चेक को बैंक में तुरंत डिपॉजिट कर दिया. सो चिल्ड्रन, बैंक में चेक अभी नहीं जा रहा है, बैंक इज नॉट रिसीविंग इट, सो बैंक को आप रिसीवर नहीं बोल सकते बच्चों. चिल्ड्रन आई रिपीट, चेक इज नॉट गोइंग टू द बैंक, तो आप बच्चों बैंक को रिसीवर नहीं बोल सकते, हेंस आप बैंक को डेबिट भी नहीं कर सकते. So children, if we have sold goods or we have received commission through check, the check which is coming to us, it's check in hand account debit. Children, you can apply the rule debit what comes in, or you can even say debit the increase in asset. And if it is for sales, children, we'll credit sale. If it is for income, we'll credit income. The rule is credit all incomes and gains. So children, I repeat, the entry for goods sold and commission received through check, but children it is not mentioned कि ये चेक बैंक में गया कि नहीं गया, तो आप बच्चों अज्यूम करेंगे कि ये चेक बैंक में नहीं गया है. द एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कमीशन, और इट कुड बी एनी अदर इनकम. द रूल इज चिल्ड्रन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपके पास जो चेक है वो एक तरह से आपकी असेट है चिल्ड्रन. डेबिट द इंक्रीज इन असेट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. देन चिल्ड्रन, आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स कभी बेचे थे. टुडे ही इज गिविंग यू द पेमेंट थ्रू चेक. द ट्रांजैक्शन वुड बी लाइक दिस चिल्ड्रन, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम सोनू. सो चिल्ड्रन, अगेन चेक इज कमिंग टू अस, एंट्री इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, सोनू इज द गिवर टू सोनूज अकाउंट. Okay children, the rule remains same for check in hand account debit, that is debit what comes in, or debit the increase in asset and credit the giver, that is the customer. Now children, when these checks are sent to bank, चाहे आपको सेल्स के लिए, कमीशन के लिए या सोनू से किसी भी वजह से मिला हो बच्चों, नाउ बैंक इज एक्टिंग एज अ गिवर चिल्ड्रन. आप बैंक को डेबिट कर देंगे विद द रूल डेबिट द रिसीवर और डेबिट द इंक्रीज इन असेट, and check in hand children will be credited with the rule credit what goes out or credit the decrease in asset. So children remember, when the check is received and it is mentioned that it has been sent to bank directly, तब तो बच्चों आप बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं. But until unless it is not mentioned children, remember not to write bank, always use check in hand. और जब बच्चों ये चेक बैंक में जाएगा, बैंक इज द रिसीवर, we'll debit it, एंड चिल्ड्रन हम चेक इन हैंड को क्रिएट कर देंगे. ओके चिल्ड्रन. देन चिल्ड्रन, जब हम एटीएम से कैश विड्रॉ करेंगे, चिल्ड्रन इफ इट इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वी हैव डन द एंट्री इन पार्ट डी, एंड इफ इट इज फॉर ऑफिस यूज, वी हैव डन द एंट्री इन पार्ट सी. ओके चिल्ड्रन, आई रिपीट, अगर बच्चों हमने एटीएम से मनी विड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज, द एंट्री बिकम्स सेम चिल्ड्रन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. And if it is for personal use children, it is drawings account debit to bank. Okay children, so the entry remains same for money withdrawn through ATM. Refer part C and D. Next children, moving down further, segment K, check endorsed. Now what is the meaning of check endorsed? बच्चों, आपको किसी कस्टमर ने फॉर एग्जाम्पल चेक दिया या आपको किसी इनकम का चेक मिला, एंड आपने बच्चों उस चेक को बैंक में डिपॉजिट ना करके किसी दूसरे पर्सन को आपने डेट सेटल करना था. यू गेव इट टू दैट पर्सन. लाइक राम से चेक मिला बच्चों आपको, एंड आपको श्याम के साथ डेट सेटल करना है, तो सेम चेक बच्चों आप श्याम को दे दीजिए. एट द बैक ऑफ द चेक यू कैन राइट द नेम ऑफ द पर्सन, बट चिल्ड्रन रिमेंबर, इस चेक पे क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए. दैट इज ट्रांसफर्स लाइंस जो होती हैं बच्चों एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दैट शुड नॉट बी ड्रॉन. सो चिल्ड्रन, अ चेक रिसीव्ड अर्लियर
from somebody is given to other party in settlement of debt is endorsement. Okay children, so I repeat again, a check given to somebody, किसी से पहले मिला था आपने वो किसी और को दे दिया, is endorsement. बच्चों याद रखिएगा, चेक की सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दो तिरछी लाइनें, ट्रांसफर्स लाइंस ड्रॉ करते हैं. इन दैट केस चिल्ड्रन, चेक का पैसा बैंक के काउंटर पे बच्चों आपको नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा. इससे बच्चों पेमेंट एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है. तो बच्चों रिमेंबर, अगर आपको किसी ने चेक दिया विद द टू ट्रांसफर्स लाइंस, तिरछी लाइनें बच्चों टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ड्रॉन है, तब बच्चों आप ये किसी और को नहीं दे सकते. बट इफ दोज लाइंस आर नॉट ड्रॉन चिल्ड्रन, हम उसे बेरर चेक बोलते हैं, नॉट अ क्रॉस्ड चेक. तो बच्चों ये आप किसी को भी दे सकते हो, दैट इज एंडोर्समेंट. सो चिल्ड्रन, चेक किसी से मिला बट आपने बैंक में भेज दिया, तो बच्चों आप इसे एंडोर्स नहीं कर सकते. हेंस एंडोर्समेंट दैट इज ट्रांसफर की कोई भी एंट्री नहीं होगी. बट when the check which was received earlier, it has not been sent to bank, yes children, definitely you got it right, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो. ट्रांजैक्शन बच्चों कुछ ऐसा लिख के आएगा, endorsed a check of rupees 80,000 in favor of Monu earlier received from Sonu. बच्चों सोनू से आपको चेक सो कॉल्ड मिला था पहले और आपने उसे बैंक में ना भेजकर मोनू को दे दिया. So children, Monu is the receiver and check is going out. The rule is debit the receiver, credit the decrease in asset or credit what goes out. तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, एंडोर्समेंट बहुत सिंपल है. चेक मिला था तो आपने एंट्री की होगी पहले कभी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोनू. नाउ यू आर गिविंग द सेम चेक नॉट टू द बैंक, रादर टू मोनू. So children, the entry will become Monu's account debit to check in hand. Moving down further children, आपको LPG सब्सिडी मिली चिल्ड्रन गवर्नमेंट से. ट्रांजैक्शन वुड कम लाइक दिस, रिसीव्ड रुपीज 150 एज LPG सब्सिडी फ्रॉम इंडेन. सो चिल्ड्रन अगेन, बैंक इज द रिसीवर ऑन योर बिहाफ, बैंक बैलेंस विल गो अप, डेबिट द रिसीवर और डेबिट द इंक्रीज इन असेट. इट्स अगेन द ओनर्स मनी कमिंग बैक समहाउ इनटू द बिजनेस चिल्ड्रन. ओनर का पैसा बच्चों वापस बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया. इट इज कैपिटल, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल. चिल्ड्रन ये बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन है, आपको जनरली क्वेश्चंस में बहुत कम जगह नजर आएगा ये. मूविंग डाउन फर्दर चिल्ड्रन, द चेक्स विच वर रिसीव्ड अर्लियर माइट बी चिल्ड्रन डिसऑनर्ड. सो चिल्ड्रन, द चेक्स विच वर फॉर एग्जाम्पल गिवन टू समबडी और रिसीव फ्रॉम समबडी, हो सकता है बच्चों बैंक में मनी ट्रांसफर उस चेक से ना हुआ हो. हम बच्चों अपनी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं चेक बाउंस हो गया. तो बच्चों चेक बाउंस कैसे होगा? इन बिजनेस लैंग्वेज इट इज चेक डिसऑनर्ड. सो व्हाट एंट्रीज कुड बी पास्ड? चिल्ड्रन, चेक रिसीव्ड अर्लियर फ्रॉम कस्टमर्स. बच्चों आपको कस्टमर से पहले कभी चेक मिला था, आपने उसे बैंक में भेज दिया, तो बैंक इज द रिसीवर एंड कस्टमर इज द गिवर. हमने बच्चों एंटिसिपेट किया कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बट चिल्ड्रन बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई ड्यू टू सर्टन रीजंस वो पैसे नहीं आ पाए. सो वी से दैट द चेक इज डिसऑनर्ड. सो चिल्ड्रन, अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम द कस्टमर इन प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक यू कैन से वॉज सेंट टू बैंक बट नाउ इट इज डिसऑनर्ड. तो बच्चों राम से जो चेक मिला था, आपको लगा कि राम ने आपको पेमेंट क्लियर कर दिया और आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट इन रियलिटी चिल्ड्रन दिस डिड नॉट हैपन. ऐसा हुआ ही नहीं बच्चों. तो चिल्ड्रन, इन दिस केस इट इज सेड कि राम इज अगेन योर डेटर एंड बैंक जो बच्चों हमने पहले सोचा था बैंक बैलेंस मस्ट हैव गॉन अप, इट डिडंट हैपन लाइक दैट. तो आपको बच्चों करेक्शन करना पड़ेगा और बैंक को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा. चिल्ड्रन आई रिपीट, राम अगेन बिकम्स आवर डेटर, दैट्स वाई चिल्ड्रन हमने राम को डेबिट कर दिया. एंड अर्लियर वी थॉट दैट मनी मस्ट हैव कम टू आवर बैंक अकाउंट, आवर बैंक बैलेंस मस्ट हैव गॉन अप. बट बच्चों हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ ही नहीं था, तो उसको करेक्ट करने के लिए बच्चों, डेबिट को करेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा आपने बैंक को जो डेबिट किया हुआ था आप उसे क्रेडिट कर देंगे. सो चिल्ड्रन, द एंट्री फॉर डिसऑनर बिकम्स कस्टमर दैट इज राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. वी हैव डेबिटेड कस्टमर्स अकाउंट चिल्ड्रन ऑन द रूल डेबिट द इंक्रीज इन असेट. राम बच्चों फिर से हमारा डेटर हो गया और हमने पहले बैंक को डेबिट किया तो ऑन द रूल दैट बैंक बैलेंस इज गोइंग अप,
बट इन रियलिटी डिडंट हैपन। तो बच्चों हमको बैंक बैलेंस वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा, पहले का डेबिट बच्चों अब हम क्रेडिट करेंगे। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, जो भी चेक हमको कभी पहले मिला था, नाउ इट इज डिसऑनर्ड, तो डेटर को बच्चों आप डेबिट कर देंगे एंड बैंक को क्रेडिट कर देंगे। द एंट्री इज कस्टमर और डेटर लाइक राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। द रूल इज डेबिट द इंक्रीज इन असेट, the person again becomes our debtor, and bank balance which was thought to go up, it didn't go up children, हम वापस से इसको करेक्ट करने के लिए क्रिएट कर देंगे। कॉन्ट्रोवर्सली चिल्ड्रन, हमने किसी को चेक दिया था लाइक अपने क्रेडिटर्स को, सो वी हैव पास द एंट्री एट दैट टाइम जब चेक दिया था बच्चों, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक बच्चों हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता, क्रेडिट द गिवर। बट चिल्ड्रन समहाउ हमारा क्रेडिटर चेक लेके गया, हमारे बैंकर्स के पास रिप्रेजेंट हुआ चेक और पता लगा कि पेमेंट नहीं हो पाया, कुड बी एनी रीजन, सिग्नेचर मिसमैच, एनीथिंग चिल्ड्रन। सो ट्रांजैक्शन विल कम लाइक दिस चिल्ड्रन, अ चेक ऑफ ₹10,000 was given to मोहन सप्लायर इन द प्रीवियस मंथ, नाउ डिसऑनर्ड। तो बच्चों जब आपने पहले चेक दिया था, एंट्री मस्ट हैव बीन डन मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बट रियलिटी में चिल्ड्रन मोहन सो कॉल्ड रिसीवर कभी बना ही नहीं, बिकॉज उसे बैंक से पैसा ही नहीं मिला। तो हम बच्चों मोहन को फिर से अपना क्रेडिटर बना लेंगे। द रूल इज क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड चिल्ड्रन अर्लियर एज आई सेड, हमने जब चेक दिया था मोहन को, मस्ट हैव डन द एंट्री मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट बच्चों उस समय हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकला ही नहीं, तो बैंक का जो क्रेडिट अर्लियर किया गया था बच्चों, दैट वाज रॉन्ग। तो वापस से बच्चों हम डेबिट करके उसको करेक्ट करेंगे। सो चिल्ड्रन वील डेबिट बैंक ऑन द रूल डेबिट बैंक अकाउंट फॉर कैंसिलेशन। सो चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, आपने मोहन को जब पहले चेक दिया था, एंट्री मस्ट हैव बीन पास्ड मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट बच्चों ये चेक डिसऑनर हो गया, मोहन को पैसे मिले ही नहीं, तो मोहन इज नो वे द रिसीवर। तो बच्चों मोहन अगेन बिकम्स आर क्रेडिटर, हमने बच्चों मोहन को क्रेडिट कर दिया, एंड क्रेडिट करने का रीजन है चिल्ड्रन क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अर्लियर बैंक वॉज क्रेडिटेड ऑन द रूल कि बैंक से पैसा निकला, बट चिल्ड्रन रियलिटी में ऐसा हुआ ही नहीं था, तो हमको उसको रिवर्स करके बच्चों डेबिट करना पड़ेगा। So children, I hope so banking transactions were quite clear. Children, again and again go through this video because these transactions are very, very, very important. Thank you, children.